गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सेट लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर 12th स्टैंडर्ड में काफी अच्छे परसेंटेज से निकले आप लोग आगे। एंड टू टॉप इट, यू नो, इट्स द आइसिंग ऑन द केक। गुड सेट अगर सही से निकल गया तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज से गुड सेट लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये पहला चैप्टर है। हर एक लेक्चर में एक चैप्टर उठाएंगे एंड वील ट्राई टू ब्रश अप वॉट एवर concepts are there in the chapter, and also we'll try to give you some short tricks, some short techniques due to which you will be able to solve numericals very easily, quite fast. Okay, तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि you know charges are of two types. Electric charges are of two types. Charges two types, positive and negative. ये आइडिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। न्यूट्रल नाम का कोई चार्ज नहीं होता। ऑल्सो ही सेड कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट। सो दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकते हैं। यू कैन हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स, यू कैन हैव अ रिपल्सिव फोर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया हियर इन लाइज दैट एवरीबॉडी, not everybody, but everybody in the universe is electrically neutral. So हर बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से all bodies in the universe are electrically neutral. Only when certain processes take place do charges move from one body to another. So तीन टाइप के चार्जिंग होते हैं, 3 methods of charging. सर वीडियो ऑफ है। How can video be off, buddy? Video is on, absolutely on. अरे सर मेरे को तो आ रहा है। हाँ, video is on. मैं भी देख पा रहा हूँ। सर मेरे को भी नहीं आ रहा। So you go out and you join again. What you do is you go out and you join again. ओके सर, आज Bago? So you know, these are network glitches. What happens is that sometimes you don't have the audio, you sometimes don't have the video, sometimes the video is blurred. So what you do, you go out, you come back again. Okay, you leave the room and you come back again. Okay? Just give me a heads up once you come back. हाँ सर आ गया। All right, lovely. So there are 3 methods of charging any body. One, charging by friction. In this particular method, you rub one body with another, and as a result, electrons will transfer from one body to another. Let me make that point very clear, that whenever movement takes place, only electrons can move from one body to another. You know, positive charges cannot be transferred, only electrons can be transferred. So we saw this, that when a glass rod is rubbed with a silk cloth, what happens is that after some time of rubbing, the glass rod acquires positive charge and the silk cloth acquires negative charge. So what has happened here is that glass rod में से electrons silk cloth में गए. Glass rod lost electrons, so it became positive. Silk cloth gained electrons, so it became negative. Another example is that of a plastic rod and fur cloth, या wool cloth, fur or wool cloth. So what happens is that after rubbing, you see that after some time the plastic rod acquires negative charge, whereas the fur cloth or the wool cloth acquires positive charge. So in this particular case, what has happened is that the fur cloth has lost electrons and the plastic rod has gained electrons. So this is charging by friction. We move on. The second is charging by conduction. Conduction मतलब टच करना, सिर्फ इसमें रब करने का धंधा नहीं आता. So
कंडक्शन मतलब सिर्फ टच करना. सो सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. एंड इसमें वो दो बंदे खाना खाने गए थे, एक के पास 50 रुपया था, एक के पास 100 रुपया था, और दोनों मिले और बिछड़ गए तो दोनों के पास 75 आ गए. सेम ओल्ड आइडिया. सपोज आई हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, one having charge q1, the other having charge q2. Now either I make them meet together, या तो तुम ऐसा कर सकते हो, टच कर सकते हो, या तो यू कैन जॉइन अ कंडक्टिंग वायर बिटवीन देम. बात तो वही हुई. सो वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट. सो मिलन किया. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम? इट इज q1 plus q2. Now when you move these spheres away, each sphere gains a charge q1 plus q2 by 2. इसका आधा q1 plus q2 by 2. इस पे भी q1 plus q2 by 2. So you can see पहले दोनों के चार्जेस अलग अलग थे. हाँ, but the spheres have to be identical. Please make it absolutely clear. Identical spheres को नजदीक लाए, दोनों का टोटल चार्ज हो गया q1 plus q2. अलग किए, दोनों को आधा आधा चार्ज मिल गया. एंड फाइनली होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में हम टच नहीं करते, बगैर टच किए हम उस चीज को चार्ज कर देते हैं. इफ यू रिमेंबर वी हैड टू स्फीयर्स एंड दोनों को सेम रखा था, एंड वी टुक अ रॉड नियर दैट प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज. एज अ रिजल्ट ऑपोजिट चार्जेस मूव्ड अवे, अनलाइक चार्जेस इधर आ गए, एंड फिर अलग कर दिया तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो गया. दैट्स अ थियोरेटिकल आइडिया. दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. ऑल्सो रिमेंबर there are smaller particles called quarks, जिसमें से दो क्वार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अप क्वार्क जिसको डिनोट किया जाता है U से, जिसकी वैल्यू है +2/3e, एंड देन वी हैव द डाउन क्वार्क डिनोटेड एज D, एंड जिसकी वैल्यू है -1/3e. अप क्वार्क +2/3e, डाउन क्वार्क -1/3e. आई एम श्योर ये नॉस्टैल्जिक चीजें सब याद आ रही होंगी आपको एज आई एम डूइंग दैट. So please try to recall all that. Then we also saw that protons are made up of 3 quarks. Which are they? U, U, D. And neutrons are also made up of 3 quarks. U, D, D. On adding, हमको पता चला U, U, D को add करते हैं तो प्रोटॉन का नेट चार्ज आता है +E, which is absolutely agreeable with our idea कि इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है -E, प्रोटॉन्स में चार्ज होता है +E. E की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. एंड न्यूट्रॉन्स का ऐड किया, मिल गया हमको टोटल 0, thus proving that a neutron is electrically neutral. So this was where we started all that. And इन सब शुरुआत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एडिटिविटी, that you can add charges no problem, but you have to keep their sign in consideration. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे, एंड यू विल ऐड देम. एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाज क्वांटाइजेशन. which said that all charges in the universe occur as an integral multiple of one fundamental charge, which gave us a very, very lovely expression. Q is equal to Ne, where E is the charge on an electron and N is an integral multiple. N can be 1, 2, 3, 4. It cannot be 1.5. It cannot be 2.25. How can you have 2.25 electrons going from one place to another? You can have either 2 or you can have either 3. You can't have sawa do electron. No, it's not possible. So Q is equal to Ne, a very, very important idea. बहुत जगह पे use होता है. And lastly, conservation. कि in an electrically isolated system, the algebraic sum of all charges always remains constant. तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में आती थी, एंड इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद कूलम्ब ने अपना चेहरा दिखाया. कूलम्ब की पधरामणी हुई और कूलम्ब ने अपने को अपना लॉ दिया, which gave us the electric force between two charges. So I think a very important milestone in this chapter is Coulomb's law. इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, एक तो कूलम्स लॉ, दूसरा गॉसेस लॉ, और उन लोगों के एप्लीकेशन भी काफी बहुत बढ़िया है. सो कूलम्स लॉ क्या कहता था? देयर वर टू चार्जेस, दिस वाज Q1, दिस वाज Q2.
दोनों के बीच में डिस्टेंस था r. And Coulomb said the electric force between two stationary, remember it is stationary and point like charges, F is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. As a result, what do you finally get? Therefore, F proportional to Q1 Q2 by R square. मैं proportionality concept introduce कर रहा हूँ. This is K Q1 Q2 by R square. This is small k, which I'm sure you remember it is called Coulomb's constant, and जिसकी value है 9 into 10 raised to 9. What is the unit? Newton meter square per Coulomb square. We went ahead. Actually, gravitational force का equation यही तक था. F is equal to बड़ा G m1 m2 by r square. But ये fundamental difference है gravitational equation और electric equation में. क्या? कि gravitation में दो bodies चाहे कहीं भी हो, G was called universal constant. तुम दो बॉडी को चाहे एयर में रखो, पानी में रखो, सैंड में रखो, कहीं भी रखो, फोर्स चेंज होगा नहीं. बट इलेक्ट्रिक फोर्स changes with change in medium, and thus we can write K as 1 by 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is called permittivity of free space या vacuum. I'm sure value भी याद होगी 8.85 into 10 raised to minus 12. कैसा? Coulomb square per Newton meter square. याद रखना, कभी कभी इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं लोग. सो कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर Q लो, चार्ज का Q लो तो भी चले, एंड अगर आपको वो लेना है A1 T1 तो भी वर्कआउट हो जाएगा. सो रिमेंबर क्या लेना है, उन्होंने किस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है. अगर Q के ऑप्शन में है तो चार्ज कूलम को Q ले सकते हो, अगर एम्पियर वाले में लिखा है तो A1 T1 ले सकते हो. ऑलराइट, सो रिमेंबर दैट. सो thus your equation becomes F is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. पर ये तो वैक्यूम वाली बात हो गई. कोई और मीडियम में रखो तो इसको तो ब्लू में लिखना चाहिए. इन अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, तुम्हारा इक्वेशन क्या बैठ जाएगा? यहां पे एप्सिलॉन 0 की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square. Epsilon is the absolute permittivity of that particular medium, and you know epsilon can be written as epsilon 0 into k. जब पहली बार सुना था तो थोड़ा और लगा था कि सर फिर से k आया. हाँ भाई, फिर से k आया. बस एक ही फर्क है, ये बड़ा k है और ये छोटा k है, और दोनों एक साथ कभी नहीं आते. So you don't have to worry. This k was called dielectric constant, and ये पूरा इक्वेशन, ये F हो गया. So finally your equation becomes, therefore F dash is F by K, where K is the dielectric constant. एक बात आपको बता दूं, छोटी सी बात है. For air या vacuum, dielectric constant is 1. For insulators, glass, wood, plastic, dielectric constant K is greater than 1, whereas for metals, dielectric constant is infinity. So keep that in mind always. You want me to write that? I don't think so. All right. This was Coulomb's law in scalar form. We will also see vector form. What was vector form? Vector form was absolutely romantic. So एकदम मस्त वेक्टर फॉर्म था. दो चार्जेस एज इज यूजुअल, ये Q1, ये Q2, ये R1 बार, ये R2 बार पे. And we needed to find the force on Q1 due to Q2. Force on Q1 मतलब किसको पड़ रही है? Q1 को. Due to Q2 मतलब कौन मार रहा है? Q2. तो we called it F12 bar. 1 को पड़ रही, 2 मार रहा है, किस तरह मारेगा? डैश. बराबर. This was the idea, and the equation was K Q1 Q2 over mod R12 bar square into R12 cap. The detailed equation follows now. तो ये तुम्हारा R12 bar कैसा है सर? R12 bar ऐसा है सर. ये R12 बार है आपका, और यही डायरेक्शन है फोर्स का. दिस इज F12 बार. तो इस तरह
तरह ये R1 R2 बार है, एंड R12 bar, if you remember, was R1 bar minus R2 bar, which finally gave us a very lovely equation, जिसमें आपको याद हो 1 आगे 2 पीछे एंड स्टफ लाइक दैट, वो सब कुछ इक्वेशन में से ही सेट होता है. सो फाइनली योर इक्वेशन becomes now R12 bar is R1 bar minus R2 bar, and so F12 bar is KQ1 Q2 over mod R1 bar minus R2 bar cubed into R1 bar minus R2 bar. बहुत ही चंगा इक्वेशन, एकदम रॉक एंड रोल. हर जगह याद रखें, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2. So this is force on 1 due to 2. Force on 2 due to 1, F21 bar will be KQ1 Q2 over mod R2 bar minus R1 bar cube into R2 bar minus R1 bar. Thus you see that F12 bar is equal to minus F21 bar. So this Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. Also remember, Coulomb's law is a two-body force. Electric force is a two-body force. क्योंकि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जितना फोर्स होगा, बाजू में थर्ड चार्ज है, उससे दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is called a two-body force. Alright. So this was the idea. Then we had superposition principle. बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल था. इसमें एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज मार रहे थे, क्या फोर्स. तो सॉरी, कंसिडर 3 चार्जेस. 3 कौन से चार्जेस है? Q1, Q2, Q3, Q4. 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 कैसे हो सकता है? 3 चार्जेस हो सकता है, Q1, Q2 एंड Q3. ये पता नहीं कौन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कौन है? So Q1, Q2 and Q3, and we want to find the net force on Q1. तो 1 को कौन कौन फोर्स मारेगा? 2 भी मारेगा, 3 भी मारेगा. So F1 bar will be F12 bar, the force on 1 due to 2, plus it will be F13 bar, the force on 1 due to 3. So ऐसे ज्यादा भी हो जाते तो force on 1 due to 4, force on 1 due to 5, and it goes on and on. So this was superposition principle. Remember, F1 is not F12 plus F13. No, vector sum है ये, कतई स्केलर सम नहीं है. You will have to take the angles into consideration. So ध्यान रखें. So if अगर तुम्हारे पास दो फोर्सेस हैं, suppose there are forces F1 and F2, और उन दोनों का नेट फाइंड करना है. 11th स्टैंडर्ड का एक बढ़िया सा इक्वेशन था, वही मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. The resultant of two forces F1 and F2 having angle theta between them is F is root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. You might at any point of time be given two forces separated by angle theta, then the resultant, F resultant, is root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. So this was a very good idea, superposition principle. इसके आगे हम चलते हैं. अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी जस्ट एक सेकंड देख लो इसको. ऑलराइट, हर चार्ज अपने आसपास एक रीजन प्रोड्यूस करता है जहां पे उसका पावर देखा जाता है. दैट रीजन इज कॉल्ड इट्स फील्ड. एंड चार्ज प्रोड्यूस करे तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कोई मास प्रोड्यूस करे तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिफाइंड एज द फोर्स over the test charge. So this is the foremost definition of electric field, that electric field is defined as the force acting per unit positive charge. ये Q जो है वो टेस्ट चार्ज है, एंड हमारा आइडियल टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आइडियल टेस्ट चार्ज is unit positive charge. We call it UPC. Value is +1 कूलम. मतलब जहां कोई नहीं होता है वहां +1 कूलम को इमेजिन किया जाता है,
और उस पर कितना फोर्स है वो देखा जाता है। तो हम लेट अस फाइंड आउट द फोर्स। लेट अस कंसीडर यहां पे कोई चार्ज है बड़ा Q एंड ये है पॉइंट P और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। What will be the electric field due to Q at point P? Lovely equation, people. The electric field at point P due to charge Q is E bar is K bada Q by R square into R cap. And in value, in terms of magnitude, you know, one of my finest equations, I say E is KQ by R square. I hope you remember me speaking this equation many times over. So E is KQ by R square. Now, this was the idea. The SI unit of electric field is Newton per coulomb. यहां से आता है Newton per coulomb, या सेकेंड चैप्टर में से आपको याद है तो इट इज वोल्ट पर मीटर। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन भी होगा इसका। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी शोन कमिंग आउट, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी शोन कमिंग इनसाइड। देयर वाज अ प्राइम क्वेश्चन कि सर ये एरो की साइज छोटी क्यों होती जा रही है? The reason is that you can see electric field is also proportional to 1 by R square. As a result, जैसे जैसे distance बढ़ता है वैसे वैसे field की value भी कम होती जाती है। And this is the idea behind electric field. Positive charge में से electric field बाहर निकलता है, negative charge में electric field अंदर आता है। And ये तो सिर्फ एक चार्ज की वजह से है। अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हो Q1, Q2, Q3, Qn, then net electric field for n charges, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल ओबे करता है। For n charges, the net electric field, हैंडराइटिंग सुधरी नहीं मेरी अब तक, at point P is E bar is E1 bar plus E2 bar plus plus En bar. So बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां खत्म हो जाने से एक नए टाइप के सम्स शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दो एक टाइप के सम्स बताऊंगा किस तरह के पूछे जाते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने जेई वगैरह में नीट में किया था, यू नो दे वुड गिव यू टू चार्जेस एंड दे वुड टेल यू टू फाइंड they would tell you to find a point where the net electric field or net force would be 0. तो किस तरह आप वर्कआउट करोगे? सो सपोज तुम्हारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, लेट अस से दिस इज plus 8 microcoulomb and this is minus 2 microcoulomb separated by a distance of 20 centi, and they tell you find a point where the net force is 0 or the net electric field is 0. Where should that third charge be kept? This was called मम्मी पप्पा न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें दोनों ऑपोजिट साइंस होने से एक मम्मा था और एक पप्पा था। इसमें जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा था वो पप्पा था और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा था वो मम्मा था। एंड हम हमेशा थर्ड चार्ज को कहां रखते थे? छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के बाजू में। सो हियर somewhere we used to keep this charge q. Give it any sign you want. Let us say this is x. तो यहां पे सर नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? लुक हियर, प्लस क्यू और माइनस टू में किस टाइप का फोर्स होना है? अट्रैक्टिव। सो माइनस टू विल पुल प्लस क्यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज एफ अट्रैक्टिव। एंड प्लस क्यू और प्लस 8 में किस तरह का फोर्स होना है? रिपल्सिव। तो प्लस 8 प्लस क्यू को क्या करेगा? डिश। सो दिस इज रिपल्सिव। यू कैन सी बोथ फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड अगर दोनों इक्वल भी हो जाए तो तुम्हारा नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। फॉर नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी जीरो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अट्रैक्टिव हैज टू बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ रिपल्सिव। एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना और कुछ नहीं डालना। एफ ए किसके किसके बीच में? इसके इसके। तो के क्यू 2 माइक्रोकूलम, गलती से माइनस मत डाल देना, ओवर कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? एक्स स्क्वायर।
एंड रिपल्सिव इसके और इसके, तो के क्यू 8 माइक्रो ओवर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस 8, 20 प्लस एक्स. इफ यू आर वॉचिंग क्लोजली, के क्यू माइक्रो कट जाना है, ये 20 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा एंड यू कैन सॉल्व एंड फाइंड फॉर एक्स. दिस वाज वन टाइप ऑफ सम. देन देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ सम जिसमें दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे. दिस वाज कॉल्ड दो दोस्तों की बात. आप लोगों की याददाश्त तेज हो तो ठीक है, नहीं तो फिर राम राम. दो दोस्त की बात ऐसा, ये +8 माइक्रो और ये +2 माइक्रो. लेट अस से डिस्टेंस दोनों के बीच में 20 सेंटी. एंड दे वुड आस्क यू टू फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स और द नेट फील्ड इज 0. इसमें ये तो हमने फोर्स देगा, पर फील्ड भी यहीं पे आएगा जहां 0 होगा, नल पॉइंट यहीं पे आएगा. एंड इस सिस्टम में दो दोस्तों के सिस्टम में तीसरा कहां आएगा या तीसरी कहां आएगी, बीच में. सो यहां पे कहीं पे तीसरी को बिठा देते, साइन दे देते. तुम पॉजिटिव भी दे सकते हो, नॉट एन इश्यू, जस्ट टू कीप इट टैंगी. मैंने इसको नेगेटिव दिया है. अच्छा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स इस पे, +8 माइनस क्यू को किस तरफ खींचेगा, इस तरफ. सो विल कॉल इट F1 एंड +2 माइनस क्यू किस तरफ खींचेगा, उस तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, F2. एंड सीधी बात, फॉर नेट फोर्स टू बी 0, फॉर नेट फोर्स भाई किस पे, ऑन माइनस क्यू टू बी 0, F1 has to be equal to F2. So same mission template will apply. F1 किसके किसके बीच में, इसके और इसके. Only magnitudes please. तो K Q 8 माइक्रो ओवर कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, x, तो x का स्क्वायर इज F2 किसके किसके, इसके और इसके. तो K Q 2 माइक्रो, ओनली मैग्नीट्यूड प्लीज, अपॉन 20 माइनस x द होल स्क्वायर. फेयर इनफ. और इस तरह के Q8 माइक्रो वगैरह काट करके आप x की वैल्यू को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दीज वर 2 टाइप्स ऑफ सम्स. देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ सम वेयरइन 2 स्फीयर्स होते हैं. ये जो सम्स मैं देख रहा हूं, ये सारे सम्स आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक के हैं, गुड सेट वगैरह लेवल के हैं. तो इनको ध्यान से आप करेंगे तो काफी कारगर सिद्ध होगा आपके लिए. तो देयर वाज दिस सम जहां पे 2 चार्जेस, 2 स्फीयर्स अनचार्ज थे और लटक रहे थे एक ही पॉइंट से. और क्योंकि अनचार्ज थे तो दोनों साथ साथ थे, बातें खास खास थी दोनों के बीच में. पर दिस विल कॉल टाइप नंबर 3. इसका नाम देते हैं रिंड स्फीयर्स. इनिशियली दोनों लटक रहे ले, कोई दिक्कत नहीं. फिर हमने क्या किया, कमीनापन कर दिया. हमने इस सिस्टम को चार्ज क्यू दे डाला. पहले न्यूट्रल थे दोनों, नो प्रॉब्लम. फिर मैंने चार्ज क्यू दे डाला. डू यू एग्री, दोनों पे आधा आधा गया, Q/2. एंड जैसे ही दोनों पे लाइक चार्ज आ गया, दोनों रिपेल कर दिए और सिस्टम किस प्रकार हो गया, इस प्रकार. गंदा डायग्राम है, थोड़ा सा गंदा है, तो इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे. या मस्त, ये छोटा क्यू, ये भी छोटा क्यू बोलो, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस r बोलो. एंड लेट अस कॉल इसको थीटा बोलो, तो इसको भी थीटा बोलो. इस प्रकार का कोई भी सम पूछेगा, फंडा यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा फंडे में, ध्यान रहे. अच्छा, अब स्ट्रिंग्स में आ गया टेंशन, तो वील कॉल दिस t. एंड t के लेंगे 2 कंपोनेंट्स. दिस इज जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, दिस इज t cos थीटा, एंड दिस विल बी t sin थीटा. सपोज इसका मास है m, तो mg वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ. सो दिस इज mg. एंड ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को. ये किधर मारेगा, इसको डैश. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन. एज यू कैन सी, मस्त सिचुएशन हो गई है. तो इन इक्विलिब्रियम t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, Fe. t sin थीटा is balancing Fe, and Fe everybody knows is KQQ by r square. KQQ by distance कितना दोनों के बीच में, r square.
तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसमें बहुत सारे टाइप की कलाकारी हो सकती है। वो आपको थीटा दे सकते हैं एंड चार्ज क्यू मांग सकते हैं। सो थीटा दिया होगा, तुम दोनों को डिवाइड करोगे, टी टी कट जाएगा, साइन बाय कॉस विल बी tan थीटा एंड के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय mg। मास दिया हो, यू कैन फाइंड आउट क्यू। या फिर तुम्हें चार्ज देंगे, आर देंगे, मास देंगे, थीटा फाइंड करने को कहेंगे, तो भी वही फंडा, दोनों को डिवाइड करो एंड काम आगे बढ़ाओ। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको क्यू देंगे, आर देंगे, एम देंगे और बोलेंगे टी फाइंड करो। कैसे करोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ ऑफ देम। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज दिस शीट स्क्वायर प्लस दिस शीट स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, निकल गया बाहर, टी स्क्वायर निकाल लो इक्वेशन। सो ये एक सम से मैं बहुत सारे, ये मैं इसको है ना आटे की तरह बिलीव करता हूं ना, आटा फ्लोर जिसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, उसी आटे से रोटी बना सकते हो, उसी आटे से पराठे बना सकते हो, कुलचे बना सकते हो, नान बना सकते हो, भूख लगेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सम है। सो यू माइट एज वेल डू दिस। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात डाइपोल की। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत वक्त बिताया डाइपोल के साथ, हमारी काफी यादें जुड़ी हुई है डाइपोल के साथ। सो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये रहा तुम्हारा टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस वी कॉल्ड इट 2a। दिस वाज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इधर से इधर तक a, इधर से इधर तक a। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी, विच वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and we denoted it as p bar। p bar छोटा p bar, भाई p bar is q into 2a bar। वाव भाई सर वेक्टर है? हाँ वेक्टर है, दिशा भी होगी। सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ p bar is कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम्ब मीटर, c बड़ा, एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम, कोई याद करके बता रहा है? नहीं, मैं बता देता हूं, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो देखा जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये है डायरेक्शन पी बार का, इस डायरेक्शन में जाता है पी बार। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी थी, एक्सिस एंड इक्वेटर। सो इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द डाइपोल, दिस प्लस क्यू, दिस माइनस क्यू, दिस line which passed through was called the axis of the dipole, and a line perpendicular to the axis, this line which was perpendicular to the axis was called equator of the dipole। हमने दो पॉइंट्स चूज किए थे, एक पॉइंट एक्सिस पे चूज किया था, उस पे इलेक्ट्रिक फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, एक पॉइंट इक्वेटर पे चूज किया, उसका इलेक्ट्रिक फाइंड किया। थैंकफुली डेरिवेशन का हमको दरकार नहीं है। तो ऑन द एक्सिस, यादें, E bar on the axis, you know the point is at a distance, everything is measured from the midpoint of the dipole, point is at a distance r, so 2kpr, anybody, over r square minus a square the whole square p cap। and if there was an if r much greater than a, तो फिर E bar on the axis, what does it become? 2kp by rq into p cap। This was the more famous equation। E bar on the axis is 2kp by rq। On the equator, I'm sure many people will remember the equation. E bar on the equator is minus kp over r square plus a square the whole raised to 3 by 2 p cap। and if r is much greater than a, then E bar on the equator is minus kp by rq। सो एकदम चंगे इक्वेशन है, चकाचक। ऑल्सो डाइपोल के साथ हमने टॉर्क वॉर्क को देखा था कि इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, नो फोर्स। याद रहे, इफ अ डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, नो फोर्स, नेट फोर्स इज 0।
I'm not drawing the diagram. I don't need to go into the derivation. So I just write it down. In uniform electric field, only torque Q, no net force. So due to only torque, dipole will perform only rotational motion, no translational motion. And equation for torque is given as tau bar is P bar cross E bar. That is, the value of torque tau is PE sine theta. Lovely equations here, people. And this torque will tend to align the dipole in the direction of electric field. So this torque will align the dipole in the direction of electric field. Finally, dipole aligns in the direction of electric field. और वहां पे जाके torque 0 हो जाता है. On the other hand, in a non-uniform field, in a non-uniform electric field, dipole will experience both rotational motion as well as translational motion. There is torque, net torque, and a net non-zero force. So dipole performs both rotational motion as well as translational motion. एक पॉइंट पे आके dipole aligns in the direction of electric field, तो torque becomes 0 when dipole aligns in direction of field. Torque is 0, but दोनों पॉइंट पे नेट फोर्स अलग होने की वजह से लीनियर मोशन कंटिन्यू करेगा. बट नेट फोर्स इज नॉट 0, सो लीनियर मोशन गोज ऑन. जब बिट्स ऑफ पेपर को कंघी के पास ले आते हैं तब यही फिनोमिनन हैपन करता है. Bits of paper में dipole induce हो जाता है, and when you bring the comb near to that, the charged comb near to the piece of paper, the dipole, it will go into the non-uniform field, and first they will perform rotational motion, then they will perform translation, and you will see the attraction happening in the bits of paper due to the charged comb. This was the idea. अच्छा, कुछ एक equation इसमें important है, ये तो ठीक है, but suppose the dipole is initially at angle θ1. And you want to rotate it to an angle θ2. So how much work would you have to do? Tips. We'll call it some tips. Work done to rotate dipole from θ1 to θ2. The red is gone out of business. Work is PE cos θ1 minus cos θ2. And if initially dipole is aligned with the electric field, then do you agree θ1 will be 0? Then θ1 is 0 degree. So how much is the work done? As simple. Cos 0 is how much? 1. So PE 1 minus cos theta. मैंने θ2 को theta ले लिया. So keep this in mind. These are some important tips for work done to rotate the electric dipole. Then we go on. और अब जो बातें होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें होंगी. अब इसमें कुछ ज्यादा बातें तो है नहीं, but I'll just show you that electric field lines are representations of electric field. And फैराडे ने ये बात हमको बताई थी. फैराडे का आइडिया था पूरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फील्ड लाइंस. तो फील्ड लाइंस, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ओवर दिस. सपोज this is a positive charge and this is a negative charge. We know electric field comes out from positive charge and goes into negative charge. So if I were to represent both electric fields using a single line, it would be something like this. इसमें से बाहर निकलना और इसमें घुस जाना. Not only this, मैं और भी अलग अलग टाइप की लाइन से ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं.
as you can see. And अगर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो जस्ट बी केयरफुल कि जितनी लाइंस पॉजिटिव में से निकल रही है उतनी नेगेटिव में घुसनी चाहिए. सो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी सी? फर्स्ट, electric field lines come out from positive charge, enter into negative charge. Second, if I want to find the electric field at this point P, what I need to do is I need to draw a tangent. So a tangent drawn at any point on the field line would give the direction of electric field at that point. Third point, two electric field lines can never intersect each other, because if they were to intersect, then at the point of intersection we would get two different electric fields, which is not possible. Fourth, crowded lines indicate strong field, sparsely populated lines, दूर दूर की lines indicate weak field. And finally, ये एक important बात थी, number of field lines due to charge Q. You know, अगर चार्ज Q पॉजिटिव हो तो फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, अगर नेगेटिव हो तो अंदर आएगी, बट नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता. N is beta Q by epsilon 0. Very important idea. N, number of field lines, is beta Q by epsilon 0. Beta is a constant, and if beta not given, then take beta as 1. ये 9 नहीं है, 1. तो आप बीटा को 1 ले सकते हैं, and this is how the electric field would move on. Then we have continuous charge distributions. जेई मेंस वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात सिद्ध होती है ये. यू नो, 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने नई नई क्वांटिटीज देखी थी. We called it lambda. We have linear charge density. You know, this is a one-dimensional distribution. We used to call it lambda. Lambda is charge per unit length. That is, lambda is Q by L. If you remember, हम इसको भाव कहते थे कि कुछ भी लेने से पहले हम ये जानना हमेशा चाहते हैं कि इस चीज का भाव क्या है, इस चीज का रेट क्या है. So this was the first and the foremost important thing that we used to find out in any linear charge distribution. Lambda is charge upon length. SI unit is coulomb per meter. SI unit of lambda is coulomb per meter. Similarly, this is a one-dimensional distribution. Then we have surface charge distribution. Surface charge distribution. This is a two-dimensional distribution. Area होता है इसमें. So उसमें होती है surface charge density. Surface charge density. And linear charge density को lambda कहेंगे. Surface charge density को कहेंगे sigma. It is charge upon area. Oh, तो sigma is Q by A. And SI unit of sigma is coulomb per meter square. Coulomb per meter square. Finally, we have the third thing, which is the volume charge distribution. Morning. Volume charge distribution. This is a three-dimensional distribution. और इसमें होती है volume charge density. Volume charge density. We call it rho. Rho is charge upon the given volume. So rho was Q by V. And SI unit was coulomb per meter cube. तो इन तीनों को यूज करते हुए अलग अलग टाइप के फंडे आते हैं. बट जब भी इस टाइप का सम आए कंटिन्यूस चार्ज वाला, प्रोसीजर सिंपल है. सबसे पहले तो या तो लैम्बडा या सिग्मा या रो फाइंड करेंगे. सेकंड, अगर ये वाला टाइप है तो एलिमेंटल लेंथ चूज करेंगे. ये वाला है तो एलिमेंटल एरिया चूज करेंगे. ये वाला है तो एलिमेंटल वॉल्यूम चूज करेंगे. थर्ड स्टेप, फाइंड आउट उस एलिमेंटल जो है लेंथ या एरिया या वॉल्यूम, उसमें कितना चार्ज है. थर्ड, उस वॉल्यूम की, उस चार्ज की वजह से कितना फील्ड या फोर्स डेवलप होता है वो फाइंड करो. और फाइनली उस फोर्स को इंटीग्रेट कर दो. सो इसको यूज करके कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता दूं, टिप्स. वो आर्क वाला सम था, शायद वर्कशीट में था आर्क वाला सम.
मैं आपको ये दिखा देता हूं टिप्स में. टिप्स आर मेंट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अ चार्ज्ड आर्क. अब ये आर्क जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्बडा ही है. तो सीन ऐसा था कि यू हैड दिस आर्क and these were the two end points of the arc and they subtended an angle theta at the origin. ये origin था and they subtended an angle theta. I think the radius was what, r or something? I don't know. Yeah, maybe. You were supposed to find out what is the electric field at the origin due to this charged arc. मैंने आपको शायद एक टिप भी दिया था. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ओ ड्यू टू चार्ज्ड आर्क इज, आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं हूं ना. ई बार के लैम्बडा बाय आर. You know, lambda was linear charge density for this arc. K lambda by r bracket minus sin theta I cap plus 1 minus cos theta j cap. ये एक टिप बदल देगी आपकी दुनिया. बराबर है. So K lambda by r minus sin theta I cap plus 1 minus cos theta j cap. 1 minus cos theta या cos theta minus 1? Cos theta minus 1 I guess. अगर तुम माइनस को टोटली बाहर निकाल देते हो तो 1 minus cos theta आएगा. Okay, so this is how the things would roll. So if this is the idea, then ये आप थीटा कोई भी आपको 30 दिया जाए या whatever दिया जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. नो बिग इश्यूज. तो ये था फर्स्ट. फिर अगर आपको याद हो charged ring, you know, suppose this is your charged ring again one dimensional, उस पे नेट चार्ज है Q एंड रिंग का रेडियस है A. यू विश टू फाइंड, टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया. You wish to find the net electric field at point P, which is at a distance x. Then, what will be the net electric field at point P due to this charge ring? Having ये ring को अच्छा बनाओ. I'm not very good at drawing, but चल जाएगा काम. ऐसी रिंग है पूरी, and radius is A. ये उसकी एक्सिस है और ये पॉइंट है P ऑन द एक्सिस एंड डिस्टेंस x. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? हमने क्या किया था याद है? यहां से एक छोटा सा dq लिया था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाता था. उसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे, de cos थीटा, de sin थीटा. फिर इसकी वजह से भी ऐसा था, वो de sin थीटा दोनों कैंसिल होते थे, सारे de cos थीटा ऐड अप होते थे. यू नो, विस्तार में ये किया था हमने. बट हमको फाइनली इंटरेस्ट है फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E KQX, ladies and gentlemen, over x square plus a square the whole raised to 3/2. तो अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें ऐसा कहे कि there is a ring, total charge is Q, find and the radius is 5 cm and find the electric field at a distance of 10 cm at a point on the axis of the ring. Boom, boom, boom. लगाओ, get the hell out of there. All right. So these are examples of the idea. आगे बढ़ते हैं. और अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आई लव फ्लक्स क्योंकि ये आखिरी टॉपिक का आगाज होता है. यू नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उसके बाद गॉस लॉ आएगा एंड गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हम कर पाएंगे. सो द फर्स्ट आइडिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? According to definition, the amount of electric field linked with any area, linked with any particular area, is called electric flux. और हमने इसका इक्वेशन भी लिखा था. Electric flux is the product of electric field linked with that area.
In vector form, flux phi was E bar dot A bar. So as you can see, flux is the scalar product, dot product of electric field, a vector quantity, and area vector. You can also write it phi is EA cos theta. But you have to be doubly careful. This theta is the angle between electric field and area vector. Huh? Be careful. Theta is the angle between electric field and area vector. So for example, अगर कोई ऐसा बुक है and इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? I have told you many times that area vector is always perpendicular to that surface. So if this would be the plane surface, this would be the area vector. If this would be the plane surface, this would be the area vector. If this would be the plane surface, this would be the area vector. So always be very careful कि एरिया वेक्टर क्या है. तो कोई छोटे से एरिया के साथ लिंक्ड ये फ्लक्स है. You can see flux is a scalar and SI unit of electric flux is, I'm sure you know electric field का न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर. एंड इसको देख के हमको ये भी अंदाजा आता है कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया हो फॉर अ नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, द टोटल फ्लक्स phi is integral E bar dot dA bar over the entire area. So ये इंटीग्रल E bar dot dA bar बहुत कारगर सिद्ध होता है जब भी छोटे छोटे एरिया लेके टोटल फ्लक्स फाइंड कर रहा हूं. यू फर्स्ट फाइंड फ्लक्स लिंक विद द स्मॉल एरिया d phi एंड फिर उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर द एंटायर एरिया, यू विल फाइंड टोटल फ्लक्स. और यहीं से बात आती है इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ की, which is called Gauss's law, which is called Gauss's law. और गॉस ने क्या कहा हमसे? वही कहा जो आपने सुना. गॉस ने कहा कि the net electric flux linked with the closed surface. You remember गॉस का सबसे इंपॉर्टेंट बात था closed surface. So for a closed surface, गलती से ओपन सरफेस मत ले लेना. The net flux linked with a closed surface, flux phi is integral E bar dot dA bar over a closed surface. आपने देखा इंटीग्रल के ऊपर एक गोला मार देने से it indicates closed surface is equal to, ladies and gentlemen, heads up, is equal to the ratio of the sum of charges enclosed by the surface sigma q by epsilon 0. So flux phi linked with a closed surface is equal to sigma q by epsilon 0. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्लोज सरफेस है, कुछ अजीब ही है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है. तो भले इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 तीनों की वजह से होगा, बट फ्लक्स लिंक सिर्फ Q1 और Q3 की वजह से होगा, बिकॉज हियर sigma q will simply be Q1 plus Q3. We shall not consider Q2 as it lies outside the closed surface. Such a closed surface is called a Gaussian surface. और इस बात को हमने डिराइव किया था, पर हमको यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे उसके एप्लीकेशन देखने हैं. 4 एप्लीकेशन हुआ करते थे. एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ. पहला एप्लीकेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट, गला सूख गया. First application was electric field due to an infinitely long charged conductor. तो ये जो infinitely long charged conductor था,
कुछ इस प्रकार हुआ करता था, ये ऐसा कंडक्टर था एंड इट वाज इनफाइनाइट एंड पॉजिटिव चार्जेस लेट अस से इस पे है एंड इस कंडक्टर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्बडा एंड वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P at a distance r from this conductor. So we would like to find out the electric field at a distance r from this conductor and हमको क्या करना है, हमको गॉस लॉ यूज करके ये करना था, बट दो इक्वेशन वर्कआउट करने थे. तो दो इक्वेशन क्या थे, दो थे E, इफ यू रिमेंबर, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये पहला वाला था, और E, we love this equation 2k lambda by r. It's a lovely equation this. So we work this out and finally हमको मिला ये इक्वेशन. फिर ये तो वन डिमेंशनल था, फिर टू डिमेंशनल में we had a plane charge sheet. Alright, we had a plane charge sheet. Number 2, plane sheet, of course charged, बगैर चार्ज के तो कैसे होगा. तो इस तरह का प्लेन चार्ज शीट था एंड तुमको याद हो ये पॉजिटिव 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 हुआ करता था. हमने इसको प्रूव करने के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था एंड बाकी को प्रूव करने के लिए वी हैड टेकन क्यूबॉइड टाइप गॉसियन सरफेस. तुम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पॉइंट P है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर आता था. You remember the equation for electric field? याद है? E is sigma by 2 epsilon 0. And अगर थिक शीट हो, अब ये जेई मेंस का फंडा आ गया नीट का, फॉर थिक शीट, ये तो थिन शीट है, थिक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिंपली sigma by epsilon 0. Usually you will get thin sheet, plain sheet. So this will work out that way. फिर आगे बढ़ते हैं और फिर अच्छा इसके एक दो केस हुआ करते थे, अगर आपको मैं बता दूं, रियल जिफी में. लेट मी गो फास्ट. केसेस, वन केस, दिस वाज, let the line मारी, सिग्मा 1, दिस वाज सिग्मा 2. यू रिमेंबर पहले हमने सिग्मा 1 की वजह से जो फील्ड थे वो ड्रॉ किए थे बाहर निकलते हुए. दिस वाज सिग्मा 1 by 2 epsilon 0, दिस वाज सिग्मा 1 by 2 epsilon 0, दिस वाज सिग्मा 1 by 2 epsilon 0. फिर थैंक यू बड़ी. फिर सिग्मा 2 था, सिग्मा 2 की वजह से भी वही फंडा था, ये सिग्मा 2 by 2 epsilon 0, ये सिग्मा 2 by 2 epsilon 0 एंड ये भी सिग्मा 2 by 2 epsilon 0. इस तरफ गंदा एरो है ये, इस तरफ दोनों ऐड हो रहे थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 by 2 epsilon 0. सेम हियर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 by 2 epsilon 0. बट यहां पे दोनों एरो ऑपोजिट होने से यहां माइनस हो रहा था एंड तुमने किसको बड़ा कंसीडर किया, सिग्मा 1 को. ओके, तो वो डायरेक्शन में sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon 0. This was the general case and let me show you the special case जिसमें दो लाइंस हुआ करती थी, दो प्लेट्स हुआ करती, लाइन नहीं है प्लेट है, एक पे प्लस सिग्मा दूसरे पे माइनस सिग्मा. And to cut a long story short, the electric field in the region outside these plates would be 0, इधर भी 0 इधर भी 0. You can work out the math. जबकि बीच में ये लाइन टेढ़ी लग रही है, मुझे दूर से देखा तो सीधी थी, पास आके देखा तो टेढ़ी. इधर इन दोनों के बीच में लेडीज एंड जेंटलमैन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. दिस जेंटलमैन एंड लेडीज हमारा पहला नजर था ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटर. पहली बार देखा था, मोहब्बत सी हो ही गई थी बस, और दूसरे चैप्टर में तो मोहब्बत एकदम साझा हो गई, एकदम टाइट हो गई, कोई दिक्कत नहीं. सो दिस वाज अ कैपेसिटर, टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होना, बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना. तो ये था अपना प्लेन शीट.
और अब आता है पानी पूरी, होलोस्फीयर। वाह वाह वाह, साल भर पहले ये सब बातें आपके साथ करी थी, बैठे बैठे। डिराइव वगैरह किया था एंड काफी जल्द से किए थे। सो दिस इज अ होलोस्फीयर, or you can call it a charged spherical shell, or you can also call it a non-conducting sphere. Non-conducting मतलब चार्ज उसके ऊपर ही रहता है, उसके अंदर भीतर नहीं घुसता, non-conducting sphere कहते हैं उसको। तो ये आपका शेल और रेडियस है उसका r, बड़ा R, एंड चार्ज सारा ऊपर होता है ऑन द सरफेस, अंदर नहीं होता। या तो अंदर होलो पकड़ लो अगर होलो स्फीयर या चार्ज स्फेरिकल शेल पकड़ते हो, एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पकड़ लो अगर, तो भले अंदर कुछ भी हो पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज सिर्फ ऊपर ही होगा। नाउ इसके अंदर कोई पॉइंट लो और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करो, यार यू आर रिवॉर्डेड विद दैट। ई इनसाइड इज 0, क्योंकि अगर तुम अंदर पॉइंट लेते हो और गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हो, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस? 0। जबकि सपोज यहां कोई पॉइंट लेते हो, वी कॉल इट एस, ऑलराइट, एंड दिस इज आर, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर। आउटसाइड, ई आउटसाइड इज माय फेवरेट इक्वेशन, k cube by r square. But supposing somebody would have asked you कि हमको q के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको सिग्मा के फॉर्म में चाहिए, तो क्या कहते आप? कल आना? नहीं, आज ही, इन फॉर्म ऑफ सिग्मा। ई आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, यादें, इनटू बड़ा आर स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर। एंड एज अ टिप लेट मी टेल यू, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, भाई सरफेस ऑफ द शेल पे छोटा आर बड़ा आर इक्वल हो गए, तो ई ऑन द सरफेस कभी कभी फाइंड आउट करने को कहते हैं इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिंपल, या के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। ओके, these were equations for a spherical shell. Finally we have a charged solid sphere, the last item of the chapter. Don't worry, मैं आपको जल्दी से मुक्ति दे दूंगा। आई थिंक आप लोग काफी टाइम से चुप बैठे हैं, विच इज अनयूजुअल, क्लास में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पर थैंकफुली ऑनलाइन लेक्चर्स में हो जाता है। तो चौथा है सॉलिड स्फीयर। ये अपने कोर्स में नहीं था, भले एनसीईआरटी बुक में नहीं था, बट इसको जानना अत्यंत आवश्यक। ये पूरा चार्ज सॉलिड स्फीयर है, लाडू, वी यूज्ड टू कॉल इट लाडू, रेडियस इज आर, चार्ज पूरे में है क्यू। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग आई थिंक वी शुड डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, शुडंट वी? सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो है ये, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज है क्यू, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। तो कुछ भी करने से पहले श्री गणेशाय नमः इससे होगा, और बाकी सारी बातें हो जाएंगी। सपोज अंदर लिया पॉइंट, इनसाइड द स्फीयर, E inside, I think you might remember, you might not remember, rho by 3 epsilon 0 into r. ये सपोज ये पॉइंट P है, ये छोटा r पे है, तो ये छोटा r ये रहा, rho by 3 epsilon 0 into छोटा r, and outside the sphere, सपोज वो पॉइंट लिया होगा S और वो भी r डिस्टेंस पे है लड़ा से, तो E आउटसाइड, भाई के क्यू बाय आर स्क्वायर तो पर्सनल फेवरेट रहेगा ही, कोई भी हाल में उसको कोई झुठला नहीं सकता। E आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट रो के फॉर्म में रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 बड़ा आर क्यूब ओवर छोटा आर स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन देखे थे, मैंने आपको जेई वगैरह में कराया था, तो doesn't really make a very big difference. And on the surface पे छोटा r इज बड़ा r, तो E on the surface तुम चाहते हो तो के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर लिख सकते हो, या रो बाय 3 एप्सिलॉन 0। आपने देखा ये रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 तो कॉमन ही है हर जगह, उसके दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फॉर यू। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, साथ में इसके सम्स को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंट टिप्स भी देखे। आई एम श्योर ऐसे और भी टिप्स होंगे, आप गो थ्रू करेंगे अपने लेक्चर्स को, अपने जूनियर नोट्स को, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी सच थिंग्स ओवर देयर। एंड वंस यू डू दैट एंड यू हैव एनी डाउट्स, you can give me a call, you can post online questions, I will answer them as soon as possible। and इसका टेस्ट मैं 2 दिन बाद रखने वाला हूं, so 2 दिन बाद फिर से मिलते हैं, 3 दिन बाद। थैंक यू सो वेरी मच, you hang in there, bye bye।